हाँ जी. Now our next chapter is chapter 5, complex number and quadratic equations. First of all, we will introduce the complex number. A complex number is in the form of a plus iota b, where a and b are real numbers. Okay. In the 10th standard, we know the quadratic equation. We know x square minus 1 is equal to 0. What is the root of this equation? In this equation, we will reduce the factor x minus 1, x plus 1 is equal to 0. That is, we have x is equal to 1 and x equal to minus 1. That implies we have x is equal to plus minus 1. Okay. Now, how we use this complex number. हमने इस complex number को कैसे use करना है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी. In this quadrilateral x, in this quadratic equation, x square plus 1 is equal to 0. Here we do not split this factor. हम यहाँ पर factor split नहीं कर सकते. So x square is equal to minus 1. So x is equal to under the root of minus 1. Here x is equal to under the root of negative square root of, that is minus 1 under the root of minus 1 is iota. यहाँ से ये iota इंट्रोड्यूस हुआ है जब इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना था, तो हमें इस iota की ज़रूरत पड़ी. The negative of the square root. Okay, this is iota, and squaring both side, iota square is equal to minus 1. Squaring both side, iota square is equal to minus 1. For example, here 2 plus 3 iota is a complex number, where a, 2 and 3 belongs to real number, and minus 1 plus under root 3 iota is also a complex number. This is example of the complex numbers. Complex number are of this type. Okay. Now next, complex number. Complex number z is equal to a plus iota b. A is the real part denoted by real part of z. B is the imaginary part denoted by imaginary part of z. Also, we know that in the complex number, two complex number, let z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d. When these two complex number are equal, z1 equal to z2, when a is equal to c and b is equal to d, that implies a is equal to c means real part of z1 is equal to real part of z2, and b equal to d means imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2. Okay. Now next example है 4x plus iota time 3x minus y is equal to 3 plus iota time minus 6. Find the value of x and y. This is a complex number, variable in variable form 4x plus iota time 3x minus y. This is also a complex number. Here the relation between these two complex number is equal. When these two complex number are equal, when a real part of this number is equal to real part of this, that is 4x is equal to 3, that implies x is equal to 3 by 4. Imaginary part of this number 3x minus y is equal to minus 6. So minus of y is equal to minus 6 minus 3x, minus y is equal to minus 6 minus of 3 times x. X is 3 by 4. That is minus 6 minus 9 by 4. इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास
हाँ जी, माइनस ऑफ 24 माइनस 9/4 माइनस माइनस प्लस माइनस ऑफ 33/4 माइनस y इज इक्वल टू दिस, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 33/4। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और यहाँ से x की इक्वलिटी से ये दो वैल्यूज आ। ये नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स व्हेन वी ऐड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 plus z2 we have a complex number. Okay, let z1 is equal to a plus iota b, z2 is equal to c plus iota d, z1 plus z2 that is a plus iota b plus c plus iota d। रियल पार्ट वाले रियल पार्ट में ऐड हो जाएंगे a प्लस सी प्लस आयोटा कॉमन, इमेजिनरी पार्ट वाले इमेजिनरी में ऐड हो जाएंगे b प्लस टी। a प्लस सी इज अनदर रियल नंबर, b प्लस डी अनदर रियल नंबर प्लस आयोटा टाइम रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Okay, when we add these two complex number we have a complex number, when we subtract two complex number we have a complex number, also belongs a complex number zc3 and when we divide complex number z1 divided by z2, okay, when we divide these two complex number डिवीजन के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज z2 इज नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस z2 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर z2 0 हो जाएगा वी हैव अ इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। ओके, तो z2 शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनाना है हमें, ठीक है। तो इस पे सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, कौन कौन सी सारी प्रॉपर्टी, द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ कौन सा होता है कि अगर हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन कि अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगेन हमारे पास भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ओके, उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ इज अगर हमने z1 डॉट z2 किया तो वो किसके इक्वल आएगा? दिस इज इक्वल टू z2 डॉट z1, इसके इक्वल आएगा। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मीन्स अगर हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, इसमें ऑपरेशन कौन सा लग रहा है? मल्टीप्लिकेशन का, तो मैंने सारे ऑपरेशन मल्टीप्लाई के अंडर लगाए हैं। एसोसिएटिव लॉ होता है z1 इंटू z2 z3 इज इक्वल टू z1 z2 z3। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसको करेंगे, और अगर हमने z2 z3 को पहले मल्टीप्लाई किया फिर z1 को किया, इस सारे केसेस में हमारे पास जो नंबर आएगा वो इक्वल आएगा, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है जी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन दिस केस एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, दैट इज 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है इस केस में। ओके, उसके बाद आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है कि हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वी हैव अ 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो है उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भी आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का।
कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी दे देगा, उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा, क्योंकि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/2, उसी नंबर का रेसिप्रोकल। क्यों? क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके लिए आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। से लेट Z1, Z2, Z3, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। अगर Z1 बाहर है, दोनों प्लस में है, तो ये मूव कर जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ओके, ऐसे ही सिमिलर दूसरा क्या है Z1 प्लस Z2 डॉट Z3 है। अब यहाँ पर जो Z1 था ये लेफ्ट हैंड में था, इधर Z2 राइट में, Z3 राइट में है, तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। Z1 इंटू Z3, Z2 इंटू Z3, ये है जी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाएगा पावर्स ऑफ अयोटा। पावर्स ऑफ अयोटा का क्या मतलब है, हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने -1 अंडर द रूट ऑफ -1 क्या होता है अयोटा होता है। अगर हम इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें तो -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब अयोटा की वैल्यू -1 का अंडर रूट, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1। अगर हम क्या करें अयोटा का क्यूब करें, मतलब दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दूं अयोटा से, तो क्या आएगा माइनस अयोटा इंटू अयोटा क्यूब। तो अयोटा क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। फिर अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा स्क्वायर क्या आएगा जी अयोटा की पावर 4, इधर आ जाएगा अयोटा की पावर 4, इधर अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर इज -1, सो अयोटा की पावर 4 जो होएगा वो आ जाएगा 1। आपको 4 तक तो लर्न होनी चाहिए, अयोटा की पावर 4 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत यूज़ करना है, अयोटा स्क्वायर -1, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा, ये सारे आपको टिप्स पर लर्न होने चाहिए फॉर्मूले, ये सारे के सारे तीनों। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, वो हमें कोई भी पूछ सकता है, जैसे हमें निकालना हो अयोटा की पावर 6 क्या है, तो हम क्या लिखेंगे अयोटा की 4 इंटू अयोटा स्क्वायर। अयोटा की 4 क्या होती है 1, अयोटा की स्क्वायर -1, आंसर क्या बन जाएगा -1। ठीक है, ऐसे हमें अयोटा की पावर 7 पूछ ले तो हमने क्या करना है अयोटा की 4 इंटू अयोटा की क्यूब। ओके जी, तो 1 इंटू माइनस ऑफ अयोटा, आंसर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ अयोटा। ठीक है, अब आपने याद रखना है इसमें कि चलो हम एक मिनट आपको मैं बताती हूँ, इसको और आगे लेके चलते हैं। अयोटा की पावर 8 क्या होएगी, अयोटा की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, अयोटा की पावर 9 कैसे सॉल्व करेंगे, अयोटा की पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे, साथ में अयोटा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू अयोटा, आंसर आ जाएगा अयोटा। अब यहाँ से एक रिजल्ट बन रहा है, हमने ना इकट्ठी चार हमने जैसे कि 6, 7, 8, 9 इकट्ठी 4 पावर्स को ऐड किया, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को, जैसे कि 6, 7, 8, 9 सभी की पावर्स को ऐड किया है। तो हमने अगर मान लो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगी, अयोटा की पावर 6, अयोटा की पावर 7, अयोटा की पावर 8 प्लस अयोटा की पावर 9, इसका आंसर क्या है, सीधा इनका सम क्या है। यहाँ -1 आया, यहाँ माइनस अयोटा आया, यहाँ 1 आया, यहाँ प्लस अयोटा आया। अगर आप इसके आंसर लिखें -1 माइनस अयोटा +1 प्लस अयोटा, बच्चे ये सारे आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या बन रहा है 0। तो आपने ये रिजल्ट बना लेना है कि अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर आ रहे हैं, एक साथ इंटीजर आ रहे हैं, जैसे कि k+1, k+2, k+3, ठीक है, अयोटा की पावर में आ रहे हैं, इन सब की अयोटा की पावर को अगर ऐड करने को बोलेगा, इन सब का आंसर 0 ही आएगा। अगर आपको मान लो आ जाए क्वेश्चन अयोटा की पावर n प्लस अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 अयोटा की पावर n+3 को ऐड करो जी, इसका आंसर क्या है। आप लोग तो सॉल्व करने बैठ जाओगे, अयोटा की पावर n कॉमन निकाल लोगे।
ठीक है। योटा की पावर n कॉमन निकालोगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ योटा आएगा, यहाँ योटा स्क्वायर, यहाँ योटा क्यूब। 1 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, 1 ही रहेगा, योटा भी योटा रहेगा। योटा स्क्वायर क्या होता है -1, योटा क्यूब माइनस योटा होता है, ये सारे कैंसिल होके क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो आपको ये सीधा ही रिज़ल्ट अप्लाई कर देना है, 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको रिज़ल्ट प्रूव करके दिखाया है। 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर ऐड हो रहे हैं पावर्स में योटा की, तो उसका आंसर क्या आना है, 0 आना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस योटा। हमने जो हमें एक्सप्रेस दी हुई है नीचे, हमने उसको a प्लस योटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे को दिया हुआ है 5 अयोटा इंटू 1/8 अयोटा। तो ये यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5 और 8 1/8 मिलकर 5/8 बन जाएंगे। ये योटा और योटा स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा, योटा स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला योटा और ये योटा, तो मुझे पता है योटा स्क्वायर -1 होता है, इसका आंसर तो 5/8 आ गया। अब उसने तो मुझे बोला इस फॉर्म में बनाओ, यहाँ तो योटा है नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस तरह की सिचुएशन में, 5/8 प्लस योटा टाइम 0 लिख दिया करेंगे, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, यहाँ योटा है, 2 योटा है, 1/8 की पावर 3 है। तो अभी देखो यहाँ योटा और यहाँ योटा, यहाँ योटा स्क्वायर साथ में 2, यहाँ योटा की पावर क्यूब और नीचे 8 की पावर क्यूब। अब जो 8 की पावर क्यूब है जी 256 है। ओके 256 नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, रुको। यहाँ लिखिए 2/8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। यहाँ योटा की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई, एक कैंसिल कर दो, 4 आ जाएगा इधर। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 कैंसिल करने के बाद योटा की पावर 5 कितना होता है, योटा की 4 इंटू योटा, यहाँ आ जाएगा 256। योटा की पावर 4 1 होता है, तो यहाँ आंसर आ गया योटा बाय 256। अब यहाँ पर a प्लस योटा b की फॉर्म होती है, तो योटा के साथ का मल्टीप्लाई है, b a नहीं है, फॉर्म तो ये होती है ना a प्लस योटा b। हमारे पास क्या दिया हुआ है, a की जगह पे 0 लिखो, योटा b की जगह पे 1/256 लिख दीजिए। इस तरह हम फॉर्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 5 - 3 योटा के होल क्यूब को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब होल क्यूब हमने जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में खोलते थे, वैसे ही हमने ओपन करना है। क्या होता था, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, उसके बाद क्या होता था -3ab इंटू a प्लस a माइनस b। 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 125। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 अयोटा का क्यूब आएगा। 3 3s are 9, 9 5s are कितना आ जाएगा, 45 अयोटा, 5 - 3 अयोटा। ओके हाँ जी, सॉल्व करो इसको। 125 अयोटा की क्यूब कितना होता है, माइनस ऑफ अयोटा यानी कि प्लस 27 अयोटा, 145 इंटू 5 होता है जी 225 माइनस 225 अयोटा माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 3 होता है जी 135 अयोटा का स्क्वायर, 125 प्लस 27 अयोटा माइनस 225 अयोटा, यहाँ अयोटा का स्क्वायर नेगेटिव, -135 माइनस 135 प्लस 125 दैट इज -10, और ये -225 और ये +27 दैट इज -198 अयोटा। ये आपका आंसर आ गया। इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट मॉडुलस निकालने के लिए वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, और डिनोट कैसे करते हैं मॉडुलस को, इस ढंग से, दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस। मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, आपने इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ z दैट इज अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 4 + 9 अंडर द रूट ऑफ 13। ओके इस तरह से हम मॉडुलस निकाल लेंगे। उसके बाद है एक नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉन्जुगेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट, conjugate of complex number। Let
Z is equal to A plus iota B, a complex number and conjugate denoted by this. यहाँ पर एक बार लग जाता है Z के ऊपर, तो A प्लस iota B के ऊपर भी बार लग जाएगा. अब ये बार हटेगा कैसे? ये बार ऐसे हटता है, ये कॉन्जुगेट ऐसे हटता है, ये निशान चेंज कर देता है. ये प्लस का निशान है, इसको माइनस का बना देगा, A माइनस iota B बन जाएगा. ये ऐसे चेंज हो जाता है. अगर मान लो आपके पास Z है A माइनस ऑफ iota B, तो आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है. कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू A माइनस ऑफ iota B का कॉन्जुगेट, तो इसका आंसर आ जाएगा A प्लस ऑफ iota B. ओके, यहाँ पर जो iota के साथ का चार्ज होएगा उसको वो चेंज कर देगा, ऑपोजिट कर देगा. अगर प्लस का है तो माइनस का, अगर माइनस का है तो प्लस का कर देगा. ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -A1 माइनस ऑफ iota टाइम B1, ठीक है, तो आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है, -A1 माइनस iota टाइम B1. तो इसमें ये जो आगे का माइनस है, रियल पार्ट के साथ का माइनस नहीं चेंज होगा, ये -A1 ही रहेगा. चेंज किसने होना है? iota के जो साथ है माइनस, उसने ऑपोजिट हो जाना है, प्लस हो जाएगा. ये आंसर आएगा. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है. मैंने आपको बताया था, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा, अगर कोई नंबर है हमारे पास 2, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होएगा, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे होगा? मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस iota टाइम B1, ठीक है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो वो क्या होएगा? 1/Z, दैट इज़ 1 ओवर A1 प्लस iota टाइम B1 होगा. आपको याद है, आप 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में जब भी आपके पास अंडर द रूट ऑफ 2 + 3 आता था, या 3 + √2 आता, तो आप उसको रैशनलाइज करते थे, आप उस अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते थे. ऐसे ही iota भी डिनोमिनेटर में भी नहीं रहेगा, इसका भी फॉर्म बनेगा A प्लस iota B, तो वो भी रैशनलाइज करके ही बनेगा. मान लो हमारे पास Z1 बन गया 1 ओवर A1 प्लस iota टाइम B1 है, इसको रैशनलाइज करो. रैशनलाइज करने का कंडीशन क्या होती है? अगर यहाँ प्लस है तो हम नेगेटिव लगा देते हैं, नेगेटिव लगा दिया. अब ये क्या बन गया? A प्लस B, ये बन गया A माइनस B. आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला? A1 का स्क्वायर माइनस iota टाइम B1 का स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पर हमें पता है A1 माइनस iota टाइम B1 है, तो A1 का स्क्वायर तो सिंपल A1 का स्क्वायर रहेगा. यहाँ पर क्या आ जाएगा? iota का स्क्वायर आएगा, साथ में B1 का स्क्वायर आएगा. अब हमें पता है iota का स्क्वायर क्या होता है? -1, तो यहाँ आ जाएगा A1 प्लस, सॉरी, यहाँ आएगा A1 माइनस iota टाइम B1, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर. ये बेटा आपका 1/Z1 इस फॉर्म का बन जाएगा. इस फॉर्म का कैसे? मतलब देखो, A1 ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर आएगा, ठीक है. उसके बाद माइनस ऑफ iota टाइम B1 ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर. अब ये जो है ये A है, ठीक है, मान लो ये कैपिटल A है, माइनस iota टाइम जो ये है ये कैपिटल B है, तो फॉर्म